Good morning, students. Myself Priya Arora, and I am going to take information technology and its implications in business, which is paper 4th. Before beginning with the topic, let me introduce first the course proposed by CSGM University. The course or the syllabus consists of 5 units, in which Unit 1 basically includes the concepts of IT, that what is information technology, what are its basic features, what are the various impacts, whether positive or negative, what is wireless communication or satellite communication, what is internet with wireless, that is WAP protocol, and when printing press has been invented. So basically information technology basic concepts are included in Unit 1. Now coming to the Unit 2 will include the fundamentals of computers, which will again categorized into various subtopics like what is data, what is information, what are the various levels of data that is fetched from information, what is the process of electronic data processing, what is number system, how to convert various number systems into each other, what are the different codes that has been used in computers like BCD, ASI code, Gray code, and its conversions. Next subtopic will be computer arithmetic and gates, which will include various logic gates, implementations of gate, minimization techniques, K-map, computer processing system, or we can say CPU. What is the basic definition of CPU and computer? What are its various components like hardware, software? What are the various generations of computer? Generation means starting from the first generation to the fifth, we are moving ahead to the fifth generation, or we are working in fifth generation. So what are the changes or innovations that kept growing from first to the last generation that we are using? So and next is what are the types of computers. There are various types like microcomputer, mini computer, supercomputers. We will study in this what are CPU and its various functions, and what are the various units or components of CPU, what are the basic IO devices. IO means input output devices. There are various types of devices like keyboard, mouse, microphones, MICR, OCR, and there are various output devices as well like printer, plotter, video, etc. What is memory? What are the different categories of memory like primary memory and secondary memory? What are the various types of softwares and its applications? What is the difference between disk operating system and Windows? And last topic in this unit will include what is computer and what is networking, what is the need of communication or what is the need of networking, what are the various data transmission techniques, what is communication channel, what is the concept of multiplexing, what are the various basic network concepts, what are the different models that we use in networking, what is topology and its types, and various types of categories of network according to their size. Right now, unit 3rd will include the basic applications that we are using in our businesses nowadays. Like, since we are working online with the help of IT, we are working from last 3-4 months totally online. So whether it is business or whether it is job, we are working online and we are using different applications like MS Word, MS PowerPoint, MS Publisher, Excel, Oracle, there are various applications in which we are using through IIT. So we will study these applications like MS Word. In MS Word we will study how to document any topic, or with the help of using tools like spell check, Therasis, dictionary, or other word processors. Spreadsheet will include your MS Excel, in which we can store various types of record, or we can keep our record in MS Excel.
like worksheets. We want, if we want to store data, so we can use Excel for that, on another applications as well. What is DBMS? What is database management system? And what are the uses of using DBMS or MS PowerPoint, MS Publisher? So unit third will include all the applications which we are using with the help of IT. Now, Unit 4 will include the basic concepts of electronic data interchange process. What is the stand? What are the various standards? What is the use of EDI in finance? What is the use of EDI in basic trade transactions? What are the different applications? What are advantages and disadvantages of EDI? And what is the future scope of EDI? Last but not the least, Unit 5 will include the basic concepts of internet, like what is internet, how we are using the internet effectively, what is the history of internet, how internet came into India, how it is working, what are the different technological foundations of internet, what is different types of computing like distributive, parallel processing, client server processing, what are the various application or internet protocol suite, what is DNS, and what are the what is IP addressing, what are internet protocol, and various different IT concepts or IS concepts in internet environment. So, moving toward Unit 1, in this lecture we will cover the topics in Unit 1. So, firstly, what is information technology? Information technology क्या है? Like, फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं लास्ट 3-4 मंथ से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग टोटली जो भी वर्क कर रहे हैं, वेदर स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, बिजनेसमैन हो, ऑफिस में वर्कर्स हो, जो भी हैं, दे आर टोटली वर्किंग ऑनलाइन, राइट, ड्यू टू द circumstances that occur due to this pandemic. Every business, every office has been shut down for few months. So in that time we are working, or we are doing everything online. So that is where we are using the best form of information technology. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या, हम किस तरीके से अपने सिस्टम्स को, अपने फ़ोन्स को, अपने डिवाइसेस को यूज़ कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक जगह पे स्टोर भी करवा सकते हैं, हम उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, हम उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और हम अपने डेटा को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं. सो बेसिकली इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ इंफॉर्मेशन. Information is the meaningful data that which we share to other persons without moving from one place to another. And technology includes the concepts of networking or computer. It's a blend, or we can say it's a mixture of computer and networks through which we will share that information effectively without moving from one place to another. So if I am sitting on one place and I want to share the information to many receivers located at different places, no need for me to go to individual persons and share the information. I can easily share information sitting at my place to other receivers with the help of information technology. So basically information technology is the study of computer engineering that supports various operations of any organization. And according to ITAA, that is Information Technology Association of America, IT is the study, design, development, implementation, support or management of computer-based information system, particularly used for software applications and computer hardware. Or we can say that IT is a contemporary term that describes the combination of two things, that is computer technology, which includes the hardware and the software, and secondly telecommunications technology, that will include
the information that you want to transfer. It can be any data, textual data, it can be your any image, it can be any video, or it can be any voice data that you want to transfer. So basically IT is the combination of two things: computer technology, that what type of hardware or software we are using, and telecommunication technology, that which type of data we want to share, right? So in some companies IT may be referred as MIS or simply IS. Why MIS now? So if we are using information technology in any company or in any offices, um, we are doing everything under the control of management. That's why it is also referred as management information system. Now अगर हम IT को यूज़ कर रहे हैं तो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? Since before 3 to 4 months later, before 3 to 4 months we are doing everything ऑफलाइन, राइट? हम वेदर हम ऑफिस की बात करें, हम बिज़नेस की बात करें, सब शॉप्स खुली थी, सारे बिजनेसेस रन कर रहे थे प्रॉपरली, सारे ऑफिसेस, सब कॉलेजेस, सब कुछ प्रॉपरली रन कर रहे थे, क्लासेस ऑफलाइन हो रही थी, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था, जो जैसा चल रहा था वैसे ही स्मूथली चल भी रहा था. बट सडनली क्या हुआ? इट्स पैंडेमिक की वजह से सब कुछ लॉकडाउन हो गया, हमें घर पे बैठना पड़ा, हमें अपना काम घर से करना पड़ा. तो कहीं ना कहीं इस पैंडेमिक की वजह से हमारे इकोनॉमी पे इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा, कहीं ना कहीं कंपटीशन पे बहुत फ़र्क पड़ा. अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में जो लार्ज स्केल पे वर्क कर रही हैं या वेदर वो स्मॉल स्केल पे वर्क कर रही हैं, उन पे अच्छा खासा फ़र्क पड़ा. सो आईटी की वजह से हमने ये पॉसिबल किया कि हम अपने काम को, चाहे हम बिज़नेस की बात करें या चाहे हम ऑफिसेस की बात करें, हम अपने काम को आईटी की हेल्प से ऑनलाइन कर पाए. सो जो इफ़ेक्ट पड़ा था इकोनॉमी में, वो किसी हद तक वो हमने ओवरकम कर लिया. एक पूरी तरीके से तो नहीं, बट धीरे धीरे करके हम उस कंडीशन से बाहर आए और हमने ओवरकम किया ओनली विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, हम ऑनलाइन वर्क करने का नहीं सोच पाते और हमारी जो इकोनॉमी है वो डे बाय डे वो डाउन जाती रहती. सो आईटी ने क्या किया, एक मेजर शिफ्ट लेकर आया जॉब मार्केट में, जो कि रिजल्ट करता है दो तरीके से. अगर हमारे पास आईटी की नॉलेज है, अगर हम, इसका मतलब है कि हम अच्छी तरीके से, हम हाईली स्किल्ड हैं, और उसी पे डिपेंड करेगा कि हमें कैसी जॉब मिलेगी. अगर हमें टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर की वेल नॉलेज है तो हमारी जॉब जो होगी वो एक वेल पेड जॉब होगी. बट अगर हमें आईटी की नॉलेज नहीं है या हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो हमारी जो स्किल होगी वो लोअर स्किल्ड के अंडर में आएगी और उसी के अकॉर्डिंगली हमें लो वेजेस में ही जॉब मिलेगी. सो देखो क्या समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसा वास्ट टर्म है जो कि प्रेजेंट सिनेरियो में और फॉर इन फ्यूचर में भी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है और हेल्प करेगा. नाउ व्हाट इज़ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आईटी? In 1960s and 1970, IT was a simple, little known phrase that has been used in places like banks, hospitals to store information. अगर हम 1960 से 1917 की बात करें तो IT एक सिंपल सा फ्रेज़ हुआ करता था जो कि दो जगह पे हम मोस्टली यूज़ करते थे, एक बैंक में और एक हॉस्पिटल्स में. और करवाते क्या थे हम आईटी की हेल्प से? सिर्फ इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराते थे, नथिंग एल्स. हमें तब इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हर चीज़ नहीं मिलती कि हम क्या क्या कर सकते हैं. तब हम सिर्फ आईटी की हेल्प से अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाते थे. बट विद द पैराडिग्म शिफ्ट, जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, इनोवेशंस नए नए होते गए, आईटी में बहुत सारे चेंजेस आए, तो हमारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इनोवेशन हो गया कि हम आईटी जो था अब एक फ्रेज़ नहीं रह गया. बैंक्स या हॉस्पिटल्स की जैसी जगहों के लिए एक सिंपल फ्रेज़ नहीं रह गया. अब हम आईटी का यूज़ स्मॉल वर्क प्लेसेस से में भी कर सकते हैं, वेदर वो कोई स्मॉल ऑफिस हो, स्मॉल कॉलेज हो, हम घर से भी आईटी का यूज़ कर सकते हैं. तो आईटी की हेल्प से जो हमारा पेपर वर्क था कि हमें हर जगह पहले 1960-97 में जो भी काम करना होता था, हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी होती थी, तो हम क्या करते थे, उसको मैनुअली रिकॉर्ड उसका लिखते थे पेपर पे या किसी
नोटबुक पे हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, बट ओनली बिकॉज ऑफ आईटी जो ये हमारा पेपर वर्क था वो पेपरलेस वर्क में कन्वर्ट हो गया। अब आईटी इंडस्ट्री बेसिकली यूज़ क्या करता है, एक ऐसी इंडस्ट्री डिफाइन करता है जो कि कंप्यूटर्स का यूज़ करती है, नेटवर्किंग का यूज़ करती है, अलग अलग सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है और प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकती है। क्या करवाने के लिए, बेसिकली 4 फंक्शंस परफॉर्म कराने के लिए, स्टोरिंग द डेटा, रिट्रीविंग द डेटा, ट्रांसमिटिंग और ट्रांसफरिंग द डेटा एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा। सो 21st सेंचुरी हैज़ कम टू बी नोन एज द एरा ऑफ आईटीज़, क्योंकि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, तो ये जो हमारा एरा है वो टोटली हम कह सकते हैं आईटी का एरा है, जहाँ पे आईटी की वजह से किसी नेशन पे नहीं पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ा है और इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, किसी एक नेशन की नहीं पूरे वर्ल्ड की। सो हर सेक्टर, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, हॉस्पिटल सेक्टर हो, एकेडमिक सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हर सेक्टर कहीं कंट्री का पूरी तरीके से आईटी पे डिपेंड करता है। नाउ देर आर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। हम कहाँ कहाँ पे आईटी का यूज़ कर सकते हैं, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस स्लाइड, हम आईटी का यूज़ हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, एजुकेशन में, ट्रेनिंग में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर में, बहुत जगह यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम आईटी को ई लर्निंग लाइक ऑनलाइन लर्निंग में हम कर सकते हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम आईटी को यूज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे हम एडवांस या इनोवेशंस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, वो हम आईटी की हेल्प से करते हैं। अलग अलग डिजिटल लिटरेसी मूवमेंट पे हम उसका अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन राइट्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं आईटी को, अच्छी गवर्नेंस भी हम आईटी से कर सकते हैं, और हम एक सोसाइटी को मॉडर्न तरीके से बिल्ड भी कर सकते हैं ओनली बिकॉज ऑफ आईटी। सो नाउ व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ आईटी। आईटी के क्या क्या बेसिक फीचर्स हैं। आईटी के डेवलपमेंट से हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो सिंपल हो गई, बहुत इजी हो गई, और वर्ल्ड वाइड में ये हम इजीली हम इसको यूज़ करने लगे, सो ये वाइड स्प्रेड हो गई। हम ई गवर्नेंस को लार्ज स्केल पे यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी आईटी की हेल्प से बहुत फास्ट हुई, क्योंकि हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, तो हमारी ऐसा नहीं है कि हमारी इकोनॉमी पे उस पर उससे अफेक्ट पड़ रहा है, बहुत अच्छे से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रिमोट एरियाज increases the happiness and prosperity of not only an individual but rather the society as a whole। किसी एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस को इंक्रीज़ नहीं किया आईटी ने, एज अ ग्रुप, एज अ होल सोसाइटी को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया है और हैप्पी किया है, राइट। नाउ इट इज़ हाईली बेनिफिशियल फॉर कॉमन पीपल। आईटी जो है, जो कॉमन पीपल होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, एज दे कैन एक्सेस द राइट्स एंड कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द पर्सन हु वायलेट। अगर कोई कॉमन पीपल है और वो ईज़िली आईटी के थ्रू एक्सेस कर सकता है अपने राइट्स को, अगर उसके साथ कुछ इलीगल एक्शन होता है तो वो अपने राइट्स को एक्सेस कर सकता है और लीगली कोई एक्शन भी ले सकता है विद द हेल्प ऑफ आईटी। नो नीड टू go anywhere for this, since there are various features and merits of IT। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ के मेरिट्स हैं तो उसके डीमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस नहीं होंगे, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, वो आईटी का या टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ कर सकते हैं और एक गलत डायरेक्शन की तरफ भी बढ़ सकते हैं अगर उसका गलत तरीके से यूज़ किया जाए। तो जो एक फ़ीचर में हमने डिस्कस किया कि कॉमन पीपल के लिए बहुत अच्छा है, वो अपने राइट्स को एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ आईटी। अगर पुलिस की हेल्प लेते हैं हम ऑनलाइन, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स को अटैक तो कर सकता है और उसकी एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकता है, बट उस सेम टाइम पे टेक्नोलॉजी क्या करती है, क्रिमिनल्स के लिए डोर्स भी ओपन करती है ताकि वो स्मार्टली कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें। लाइक हम हैकिंग की बात कर लें, ईज़िली हम ऑनलाइन सुना होगा कि डेटा एक्सेस हो जाता है या अनऑथेंटिकेटेड यूज़र हमारा डेटा
रिट्रीव कर लेता है और लॉस हो जाता है हमारा डेटा, तो वो एक तरीके की क्रिमिनल एक्टिविटी है जो कि विद द हेल्प ऑफ आईटी ही पॉसिबल है, वैसे नहीं है. नाउ व्हाट आर द वेरियस इम्पैक्ट्स ऑफ आईटी. कैसे आईटी का इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी पे या वर्ल्ड पे. जैसे जैसे आईटी में एडवांसमेंट हुआ, एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था सोसाइटी के लिए. सो देर आर वेरियस पॉजिटिव इम्पैक्ट्स एज वेल एंड नेगेटिव इम्पैक्ट एज वेल. पॉजिटिव इम्पैक्ट्स में फर्स्ट पॉइंट इज IT makes it easier for companies or individual to do business transaction online, which is known as e-commerce. IT की हेल्प से हमारी कंपनीज, जितनी भी जो भी कंपनीज हैं अलग अलग या इंडिविजुअल्स के लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन करना इजी हो गया, जिस प्रोसेस को हम ई-कॉमर्स भी बोलते हैं. हम इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस. तो ये जो है हमारे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आईटी के. बट अब हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या होंगे. आईटी में जो बहुत फास्ट एडवांसमेंट हुआ है, इंटरनेट में, अदर मीडियाज़ में एडवांसमेंट हुआ है, इससे क्या हुआ, कुछ साइट्स हमारी बैंड हो गई जिसकी वजह से वायलेंस हो सकता था. तो ये एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है. ईज़ ऑफ ट्रांजेक्शन बाय द इंटरनेट. हम किसी भी ट्रांजेक्शन को इंटरनेट की हेल्प से ईजिली कर सकते हैं, जो कि जैसे कि हम ड्रग सेल कर रहे हैं या हम कुछ इलीगल एक्शन कर रहे हैं, तो वो भी विद द हेल्प ऑफ आईटी हम कर सकते हैं. सो दिस इज़ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आईटी. अब क्योंकि हमारा बेसिकली जो टॉप सब्जेक्ट है वो है आईटी, और उसकी जो इम्प्लीकेशंस है वो बिज़नेस में किस तरीके से होंगी. तो ऑब्वियसली अगर बिज़नेस की हम बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिज़नेस या उसके एनवायरनमेंट पे भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होगा आईटी का. अब वो क्या होगा. राइज ऑफ आईटी हैज़ पेव्ड द वे ऑफ वेरियस इनोवेशंस. With the digitization of information, there are more and more businesses increasing getting the benefits of digital tools to improve the prospects. IT has major impact on various aspects of business. IT अलग अलग तरीके से बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट करता है. बहुत ही इंक्रीजिंगली जो है वो अलग अलग टूल्स की हेल्प से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने बिजनेस को विद द हेल्प ऑफ आईटी. अब क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं आईटी के बिज़नेस पे. क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ करके हम बिज़नेस कर सकते हैं. मतलब एक जगह पे, हाँ ज़रूरी नहीं है हमें एक ही जगह पे डेटा का स्टोरेज करना है. अगर हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो हम क्लाउड पे जाके डेटा को स्टोर करें, ताकि हम फॉर फ्यूचर भी उसको, अगर डेटा इन केस लॉस्ट हो भी जाता है हमारे सिस्टम से, हमारे डिवाइस से, तो हम उसको अगर क्लाउड पे सेव कर देंगे तो वो डेटा हम दोबारा से रिट्रीव कर सकते हैं. तो बिज़नेस के लिए एक अच्छा इम्पैक्ट है कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की हेल्प से अपना डेटा फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी हम सेव कर सकते हैं. ऑटोमेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस. हम बिज़नेस को ऑटोमेटिकली इनोवेट कर सकते हैं, हम इंक्रीज़ कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि हमारा बिज़नेस अगर हमने स्टार्ट किया है तो वो उसी लेवल पे ही रहेगा. विद द हेल्प ऑफ आईटी हम अपने बिज़नेस में फर्दर मूव भी कर सकते हैं. वर्किंग रिमोटली. मोबाइल की टेक्नोलॉजी हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं. हमारी इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कस्टमर्स को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. अलग अलग रिसोर्सेज को, चाहे वो हार्डवेयर हो चाहे वो सॉफ्टवेयर, हम उनको मैनेज कर सकते हैं. और हम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड कर सकते हैं. इसका मतलब है कि हम इजीली डाउनलोड कर सकते हैं कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हमारी इंफॉर्मेशन शेयरिंग में हेल्प करता है. नाउ last topic of this lecture is internet with wireless, that is WAP, wireless application protocol. बेसिकली WAP है क्या. WAP एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो कि सिर्फ उन डिवाइसेस पे वर्क करता है जो कि वायरलेस वर्क करते हैं. लाइक हमारे फ़ोन्स हो गए, PDS हो गए, या माइक्रो ब्राउज़र्स हो गए. ऐसे डिवाइसेस जो कि हैंड हेल्ड होते हैं और वायरलेस होते हैं, WAP जो होता है उनके लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन हुआ है. सो व्हाट इज़ WAP? It stands for Wireless Application Protocol. It is used to access services and information. It is inherited from Internet standards. It is used for handheld devices like mobile phones. It is the protocol designed for micro browsers. It enables creating of web applications for mobile devices. It uses markup language, WML.
It is the leading standard for information services on wireless terminals like digital mobile phones and WAP standard is based on internet standard. So basically जो हमारी ये points है इनसे घूम फिर के एक ही बात बार बार सामने आ रही है कि जो WAP है वो हमारा handheld devices पे बेसिकली वर्क करता है और उन्हीं डिवाइसेस की वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में भी हेल्प करता है। अब वैप की हिस्ट्री क्या है? वैप बेसिकली जो है वैप फोरम ने पब्लिश किया था, जो कि एरिक्सन, मोटरोला, नोकिया एंड अनवायर्ड प्लैनेट ने 1997 में फाउंड किया था। ये एक ऐसा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उन डिवाइसेस के लिए जो कि टोटली वायरलेस पे वर्क करती हैं। बेसिक एम क्या है वैप का? वेब एप्लीकेशन प्रोवाइड करना छोटे स्मॉल और पोर्टेबल डिवाइसेस को, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए या PDAs हो गए। बेसिक पर्पस ऑफ वेब इज़ टू इनेबल ईजी फास्ट डिलीवरी ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम स्मॉल डिवाइसेस में ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी जो डिलीवरी होगी इन्फॉर्मेशन की वो फास्ट होगी और ईजी होगी और ईजिली हम मोबाइल यूजर्स को सर्विसेज दे सकते हैं। हैंड हेल्ड डिजिटल डिवाइसेस, wireless devices such as mobile phones, pagers, smartphones, communicators are the types of devices that uses vibes. अब ऐसे ये डिवाइसेस ऐसे हैं जो कि वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ वैब, दैट इज़ दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या एक्सचेंज हो रही इन्फॉर्मेशन। एक क्लाइंट हो गया, एक सर्वर हो गया। क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देगा क्लाइंट को। दिस इज़ द सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम ऑफ वैब। अब व्हाट इज़ वैप प्रोटोकॉल स्टैक? वैप प्रोटोकॉल स्टैक इज़ बेसिकली कि हमारा जो वैप है वो कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है। सो बेसिकली वैप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 layers: WDP, WTLS, WTP and WSP. WDP stands for Wireless Datagram Protocol. WTLS stands for Wireless Transport Layer Protocol, Security Layer Protocol. WTP stands for Wireless Transaction Protocol and WSP stands for Wireless Session Protocol. Now moving to the first protocol, that is Wireless Datagram Protocol. बेसिकली ये होता क्या है? ये एक ऐसी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि मैसेजेस को सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करती है। सिंपली जो भी हम डेटा को सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, वो विद दी हेल्प ऑफ WDP कर रहे हैं। ये एक ऐसी लेयर है जो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है कि जो डेटा है वो इफ़ेक्टिवली सेंडर से रिसीवर की तरफ मूव हो जाए और बैक अगेन मतलब रिसीवर से सेंडर पे भी ईजिली वो मूव हो जाए, राइट। सो जितने भी अदर लेयर्स हैं वो टोटली जो है वो इंडिपेंडेंट है WDP पे। ऐसा नहीं है कि अगर WDP वर्क नहीं करेगा तो बाकी के लेयर्स वर्क नहीं करेंगी। सिंपली WDP करता क्या है? वो मैसेज सेंड करने में और रिसीव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल लेयर इज़ वायरलेस ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी लेयर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नेम से समझ में आ रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, राइट, हर लेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। तो WTLS एक ऐसी प्रोटोकॉल है जो कि एक ऑप्शनल लेयर है जो कि सिक्योर कनेक्शंस प्रोवाइड करती है दूसरी लेयर को। ये WTLS जो है वो इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, यूजर्स को ऑथेंटिकेट करवाना विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स या डेटा इंटीग्रिटी चेकिंग का काम हमारी WTLS करती है। ये लेयर चेक करती है कि सिक्योरिटी लेवल, डेटा का सिक्योरिटी लेवल कितना है जो कि हम वायरलेस में सेंड कर रहे हैं। और जो हमारे मेन फीचर्स हैं WTLS की वो है डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमने डेटा को सेंड कराया फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन यूज़र टू अनदर, तो जो डेटा हमने सेंड किया है एक्चुअल डेटा, वही एक्चुअल डेटा रिसीवर को रिसीव भी हो जाए। इन बिटवीन दी प्रोसेस वो डेटा के साथ छेड़छाड़ ना हो या वो चेंज ना हो। तो अगर ओरिजिनल डेटा जो कि सेंडर ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया, अगर वो चेंज नहीं होता, इसका मतलब है जो डेटा इंटीग्रिटी है वो मेंटेन्ड है। सो बेसिकली ये WTLS इंश्योर करता है कि हमारी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, प्रिवेसी, डेटा प्राइवेट रहे, कोई भी अनऑथोराइज्ड यूज़र उसको एक्सेस ना कर सके। और ऑथेंटिकेशन मतलब जितने भी हमारे कनेक्टेड डिवाइसेस हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो, कोई भी फेक यूज़र ना हो। तो ये सब इंश्योर करता है हमारा WTLS प्रोटोकॉल। और नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज़ वायरलेस ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल। हम जितना भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे हम कोई
हम WTP बेसिकली एक ऐसी टेक्निक यूज़ करता है जिससे कि अगर हमने कोई डेटा ट्रांसमिट किया है और हमारा वो नहीं मिला तो दोबारा से हम WTP की हेल्प से उसको रीट्रांसमिट कर सकते हैं और हम एक्नॉलेज भी, हमें रिसीवर एक्नॉलेज भी कर सकता है कि येस वी हैव रिसीव्ड द डेटा। सो बेसिकली जो हमारी ट्रांजेक्शन प्रोटोकॉल लेयर है वो ट्रांजेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करती है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि हमारा जो डेटा है वो ईज़िली रीट्रांसमिट हो जाए और हमें एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाए। लास्ट प्रोटोकॉल इज़ वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल। बेसिकली वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल क्या करता है, एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करता है। जैसे हमारी HTTP है, जैसे कि हम डेटा सेंड कर रहे हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं पहले हम सर्वर से, फिर वो हमें रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद ही हमारा डेटा जो है वो शेयर करता है। तो ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का जो प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिवली हो जाए, ये इंश्योर करता है हमारा वायरलेस सेशन प्रोटोकॉल। So there are various advantages and disadvantages of wireless application protocol. Like there are various advantages like simplicity of use, हम बहुत यूज़ करना बहुत ही सिंपल है ऐप को, मोबिलिटी है, पर्सनलाइज्ड है, हम इजीली कैरी कर सकते हैं क्योंकि हम स्मॉल डिवाइसेस पे ऐप यूज़ कर रहे हैं, और ये टाइम सेविंग है क्योंकि फास्ट प्रोसेस है इसका। डिसएडवांटेजेस क्या है, क्योंकि हम सिस्टम्स पे डिवाइसेस, छोटे डिवाइस पे वर्क कर रहे हैं तो हमारी बैटरी लाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बैटरी यूज़ हो रही है तो उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। डिस्प्ले स्क्रीन जो होती है हमारी मोबाइल फ़ोन्स की स्मॉल होती है, पेजेस की बहुत स्मॉल होती है, तो एक डिसएडवांटेज हो गया। अब हम जितनी ज़्यादा डॉक्यूमेंट या इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो हमारा एक्सेस का स्पीड थोड़ा कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है, कम हो जाता है। जितना अच्छा हमारा फ़ोन होगा उतनी ही उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी होगी और एक लिमिटेड मेमोरी भी होगी। हम ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा मेमोरी को एक्सटेंड कर सकते हैं, हम अपने लैपटॉप्स पे, हम अपने सिस्टम्स पे तो एक्सटेंड कर सकते हैं हार्ड डिस्क की हेल्प से, बट हम अपने फ़ोन में वो चीज़ नहीं कर सकते। सो दिस इज़ एन अ डिसएडवांटेज ऑफ ऐप। Now last topic of this lecture is printing press and movable type, Gutenberg's invention. Printing press is basically a advancement that is ओवर द पेपर वर्क मतलब जो हम जब 15-16 सेंचुरीज़ की बात करें तो जब हमारे पास प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तो एवरीथिंग जो भी हम पब्लिश कराते थे मैगज़ीन्स में, जो भी पब्लिश होता था न्यूज़पेपर्स में, वो सब कुछ हैंड रिटन होता था। हैंड रिटन का मतलब है एक लेंदी प्रोसेस और एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था। तो जॉन्स गुटेनबर्ग ने इन्वेंशन किया प्रिंटिंग प्रेस का, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम जो बुक्स हाथ से लिख रहे थे वो हम विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग वो ऑटोमेटिकली हम करने लगे। एक क्योंकि हाथ से लिखना जो है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था, एक्सपेंसिव था, एक एक बुक को लिखने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत कॉपीज़ हमें बनानी पड़ती थी, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता था कि हम पहले एक बुक लिखें और एक बुक को हम प्रोड्यूस तो कर ही रहे हैं, उसके बाद हमें उसको अगर सरवाइव करवाना है कि वो सालों तक सरवाइव करे तो हमें उसकी हर जनरेशन में कॉपीज़ बनानी पड़ती थी। तो ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस था। तो जॉन्स गुटेनबर्ग जो कि एक गोल्डस्मिथ ब्लैकस्मिथ इन्वेंटर पब्लिशर थे, जिन्होंने यूरोप में 1450 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, इंट्रोड्यूस किया, और ये एक हिस्ट्री में एज अ माइलस्टोन ये इन्वेंशन को हम जानते हैं। बेसिकली इसको चाइना में क्रिएट किया गया था और इसका जो फर्दर डेवलपमेंट था वो यूरोप में 15वीं सेंचुरी में हुआ। एंड सो बेसिकली प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रिंटिंग मैटर को मास प्रोडक्शन करवाने में हेल्प करती है, जो कि मेनली हम न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में या टेम्पलेट्स में यूज़ करते हैं। सो प्रिंटिंग प्रेस जब नहीं थी तब क्या करते थे, हम कैसे काम करते थे, एक हम पेपर पे शीट ले लेते थे और उस पर हम वुडन ब्लॉक का पीस होता था और उस पर हम क्या करते थे, वुडन ब्लॉक को रब करके हम इम्प्रेशंस एक एक सिंगल कैरेक्टर या एक एक सिंगल सिंबल के कैरेक्टर को इम्प्रेशन देते थे। तो एक एक वुडन ब्लॉक पे हम जब रब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हमारा पूरा वर्ड या पूरी लाइन एक बार में वो टाइप हो गई, हम एक एक लेटर करके करते थे। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेस होता था
और बेसिक जो आइडिया था गुटेनबर्ग्स का प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंशन का, वो था कि हम हर टेक्स्ट को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते, स्प्लिट करते, जैसे कि हमारे पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, अलग अलग एब्रीविएशंस होते हैं, हमारे अलग अलग लोअर एंड अपर केसेस लेटर्स होते हैं, हमारे कैरेक्टर होते हैं, हम इनको कैटेगराइज करके हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से हर एक कंपोनेंट को प्रिंट करवा सकते थे। तो वो एक जो प्रोसेस था वो एक टाइम उसमें कम लग रहा था। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द लेक्चर and you have understood all the concepts. This is your feedback form. If you can give your feedback according to the following 5 categories or criteria. Thank you and have a nice day.